हमें यीशु धन्यवाद 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 करते पिता यीशु मसीह समय में हमारे गवाही के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लोग हमारे गवाही को आशीष दे राजा ராஜா உங்களுக்கு ஏசப்பாண்டவர் வெளியினங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்க கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க. வேலைக்கு போகல வாழ்க்கையிலும் நீர் அவங்களோட கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க. ஏசப்பா எங்கேங்க போறாங்களோ போக்குல வாழ்க்கையிலும் நீங்க ஆசீர்வாதிங்க. கைட்டு வேலையில ஆசீர்வாதிங்க. இன்னும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுங்க அவங்க செய்யற வேலைகள். ஆண்டவரே அப்பா நீர் ஆண்டவரே ஸ்னேகாக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சக்திக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா ஆண்டவர் வைஷ்ணவிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஏசப்பா 3 பேரும் வேலைக்கு போக்குல வாழ்க்கையிலும் நீர் அவங்களோட கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லா தேவைகளும் சந்திங்க. சமாதான சந்தோஷம் அன்பாய்க்கிங்கள ஒரு மனதில் கொடுங்க. எல்லா தேவையும் நீங்கள் சந்தேகப்பட்டனே எங்க போகிறாங்களோ கூட இருந்து நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க. நீ நல்ல ஞானத்தை புத்தி அறிவு தாங்க. ஆண்டவர் ராஜா இயேசுவே நீர் அவங்களுக்கு கொண்டு அவங்க கொண்டு என்ன சேர்த்து வைக்கிறபடி அவங்க ஃபேமிலி நீங்கள் முழுவதும் ஆசீர்வதிங்க. இது ஆண்டவரே சமாதானத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களோட கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க. அவங்க கொடுத்துருக்க 2 பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நிதிஷாக்காகவும் ஜியாக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஏசப்பா அவங்களுக்கு நல்ல படிப்பு ஞானத்தை புத்தி அறிவு கொடுங்க. ஏசப்பா ஸ்கூலுக்கு போக்குல வாட்டிலும் பாதுகாப்பு கொடுங்க. சமாதான சந்தோஷம் அன்பு ஆக்கியவங்க கொடுங்க. சாமியலுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை போல அப்பா இவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை நல்ல நிரப்புங்க ராஜா. அப்பா எல்லா தேவைகளும் எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தாலும் அப்பா எல்லாம் கிளியர் பண்ணபடிக்கு உதவி செய்யுங்க. எல்லா சப்ஜெக்டும் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்து பாஸ் பண்ணபடிக்கு நல்ல ஞானங்களை கொடுங்க. தகப்பனே ஃபுல் ஃபேமிலியும் இவங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஏசப்பா ஆண்டவர் ஏசப்பா எல்லா வேலைகளும் உங்களை கருத்தெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்குற ராஜா. ரெகுலராக வச்சு வரும்படிக்கு நீர் தான் தேவன் உண்மையின்றி வேறு எந்த தெய்வம் இல்லைன்னு விசுவாசிக்கும்படிக்கு அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றுங்க. அவங்க வீட்டில் ஒரு அற்புதங்களை செய்யுங்க. அடையாளங்களை செய்யுங்க. உங்களோட கரம் அவங்க வீட்டில் ஒவ்வொருவர் மேலும் இருக்கட்டும் தகப்பனே. போக்குல வரத்திலும் நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுங்க தகப்பனே ராஜா. உங்களோட வல்லமையான அபிஷேகத்தின் கரம் அவங்க வீட்டை முழுவதும் நிரப்புங்க தகப்பனே ராஜா. ஏசப்பா நீங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் சந்திங்க ராஜா. உங்களோட கரம் அந்த குடும்பத்தின் மேலே இருக்கட்டும். அந்த பில்டிங் மேலே இருக்கட்டும். அப்பா அந்த ஏரியா முழுவதும் இருக்கட்டும் ராஜா. ரட்சிப்புகள் இல்லாத ஒவ்வொரு ரட்சிப்புகளை வரட்டும் ஆண்டவரே ஏசப்பா. அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள் எல்லாம் போராட்டங்கள் எல்லா பிசாசின் கட்டுகள் எல்லாவற்றிலும் விடுதலை கொடுத்த பண தேவைகள் பொருளாதார தேவைகள் வீட்டின் சமாதான சந்தோஷமான உணவு உடை தேவைகள் எல்லா தேவைகளும் நீங்கள் சந்திச்சு கொடுங்க ராஜா. இதோட சாந்தி ஆண்டிக்காக அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். முகேஷ் அங்கிளுக்காக நீர் அவங்களோட கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளும். அவங்க வீட்டின் தேவைகளை சந்திங்க ராஜா. ஏசப்பா அவங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லா கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அவங்க முறியடிக்கிறோம் அப்பா. உங்களோட கரம் அவங்கள ஒவ்வொரு மேலும் தங்கட்டும். எல்லா தேவைகளும் நீங்கள் சந்திங்க. சமாதான சந்தோஷம் அன்பு ஐக்கியங்களை கொடுங்க. உங்களோட கரம் அவங்க மேலே இருக்கும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவங்களோட வல்லமை அபிஷேகத்தின் கரம் அவங்க மேலே தங்கும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. நீங்கள் பலப்படுத்துங்க தகப்பனே. நீங்கள் வழி நடத்துங்க தகப்பனே அப்பா. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்க வேலைக்கு போய் வரட்டும். நீர் கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க. அவங்க தேவைகள்லாம் சந்திங்க. சமாதான சந்தோஷம் அன்பு ஐக்கியங்களை கொடுங்க. பொறுமை இது கொடுங்க தகப்பனே. உங்களோட வல்லமை அபிஷேகத்தின் கரம் அவங்க மேலே இருக்கட்டும் ராஜா. அவங்கள ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. அவங்கள பலப்படுத்துங்க தகப்பனே. வழி நடத்த போவதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஏதோ கவலை ஆண்டிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற 3 பிள்ளைங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களோட தேவைகள் சந்திங்க. எங்கெங்க போகிறாங்க போகிற வாட்டிலும் காத்துக்கொள்ளுங்க. பிரியாக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஸ்கூலுக்கு போகிற வாட்டிலும் கூட இருந்து காத்துக்கிடுங்க. நல்ல படிப்பு நடந்து புத்தி அறிவு கொடுங்க. இன்னும் நல்ல ஞானங்களை கொடுங்க. இன்னும் உற்சாகமாக எடுத்து காலத்துக்கு பயன்படுத்த போயிருந்ததற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ராஜு ஆண்டிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களோட கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்க. அவங்களுக்கு கூட இருக்க ஒவ்வொரு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சொந்தக்காரங்க ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. அவங்களோட குழந்தைங்களையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. எங்கெங்க வேலைக்கு போகிறாங்களோ போக்குல வரட்டும். நீர் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. உங்களோட வல்லமை அபிஷேகத்தின் கரம் அவங்களை ஒவ்வொரு மேலேயும் தங்கட்டும் அப்பா. ரெகுலராக சர்ச்சுக்கு போகும்படிக்கு அப்போ எங்கே போனால் ஏழு சமாதானமாக இருக்கும்படிக்கு என் தேவ நீர் சமாதான சந்தோஷம் அன்பு ஐக்கியங்கள் ஒரு மனதுக்கு கொடுங்க தகப்பனே. உங்களோட வல்லமை அபிஷேகத்தின் கரம் ஒவ்வொருவர் மேலேயும் தங்கட்டும் அப்பா. நீர் ஆசீர்வதியும். நீர் பலப்படுத்தும். நீர் வழிநடத்தும். நீர் வல்லமையோட கிருப்பையோட எடுத்து நீங்கள் நடத்துங்க ராஜா. நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க. அதற்கான நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உங்களோட வல்லமை அபிஷேகத்தின் கரம் ஒவ்வொருவர் மேலேயும் இருக்கட்டும். இன்னும் ஊழியங்கள் செய்து அப்பா இன்னும் ஊழியங்கள் நிரம்பட்டும். சபையை நிரம்பட்டும் அப்பா. நடந்துகிட்டு ஒவ்வொரு ஊழியங்கள் மேலும் நம்மளோட கரம் இருக்கட்டும். இன்னும் எங்களுக்கு நல்ல ஐடியாஸ் நல்ல ஞானத்தை புத்தி அறிவு நீர் ஒவ்வொருக்கும் கொடுங்க நடத்த. நீங்கள் இந்த வல்லமையாக எங்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை புத்தி அறிவு கொடுக்க போறீங்க. இந்த சபையை நிரப்ப வழிய போது அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. பீட்டம்பரா வில்லேஜ் முழுவதும் நீங்கள் ஆசிரியர் பில்டிங்கில் உள்ள ஒவ்வொருவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருட தேவைகளை சந்திங்க. சமாதான சந்தோஷம் அன்பு ஐக்கியங்கள் ஒரு மனதில் கொடுங்க. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எல்லா போராட்டங்களுக்கும் பிசாசின் கட்டுகள் மந்திர தந்திரங்களுக்கு விலகி நீர் ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ளுங்க ராஜா. அவனோட வல்லமை அபிஷேகத்தின் கரம் ஒவ்வொரு மேடம் தங்கட்டும். பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். आमेन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा, स्तुति करते हैं राजा, आराधना करते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं राजा। यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद करके दयालु परमेश्वर यीशु हालेलुया। आज का इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। सुंदर आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आए हुए हर इंसान के लिए मैं
प्रार्थना करता राजा आज का दिन में जिनके नाम तूने लिखा है उन लोगों को हमारे बीच में लेकर आया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता राजा। यीशु जहाँ पर 2 या 3 जन जब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद करके तूने वचन दिया है परमेश्वर, उस वचन के अनुसार हमारे बीच में है तो मौजूद हो परमेश्वर यीशु, इसके लिए मैं धन्यवाद। हमारे आसपास हमारे अगल बगल तुम बैठे हो उसके लिए मैं धन्यवाद करता राजा। हमारा हर एक विषय को काम को तुम देख रहे हो उसके लिए मैं धन्यवाद करता राजा। हमारे हृदय को बातों को तो जानता है परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करता राजा। उसी तरह बहन सरस्वती के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड और तीनों बच्चों के लिए, उनकी भाई और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। उनके हृदय में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो सभी कुछ तो जानता है परमेश्वर यीशु। उनके हालेलुया मन की बातों को आप ब्लेस करना परमेश्वर, जो चाहत है उसको पूरा करना परमेश्वर, जो चाहते हैं उनको पूरा कर देना परमेश्वर यीशु के नाम से। उनकी घर की खुशी और आनंद और बच्चों की खुशी और आनंद मिलने के लिए तो मदद करना राजा। बच्चों के जीवन में अद्भुत काम होने के लिए तो मदद करना राजा। भाई की जीवन में अद्भुत काम होने के लिए मदद करना राजा। उनके परिवार में अच्छे काम आश्चर्य काम होने के लिए तो मदद करना राजा। पढ़ाई में मदद करना राजा, काम में मदद करना राजा, कमाई में मदद करना राजा। जो भी बीमारी है उसको दूर करना यीशु के नाम से, जो भी हालेलुया कर्जा है उसको दूर करना यीशु के नाम से। घर की शांति को बिगाड़ने वाला शैतान यीशु के नाम से दूर हो जाए। कोई भी बंधन हो, कोई भी हालेलुया शैतान के काम चाल चलन हो, सभी कुछ यीशु के नाम से दूर हो जाए। तेरे लहू से उस घर को मैं शुद्ध करता हूँ, तेरे लहू से हर एक जन को मैं शुद्ध करता हूँ यीशु के नाम से। उस परिवार को पूरे तेरे हाथ में हम देते हैं परमेश्वर यीशु। हालेलुया तूने संभालना परमेश्वर, तूने संभालना परमेश्वर। हर जरूरत को पूरा करना परमेश्वर, हर आशीष से उन्हें खुशी हालेलुया भर देना परमेश्वर, हर खुशी से उन्हें ब्लेस करना परमेश्वर, ब्लेस करना राजा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते हैं स्नेहा के लिए, वैष्णवी के लिए, हालेलुया उनके हालेलुया शक्तिवेल के लिए परमेश्वर। हम तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। उनके जीवन पर हालेलुया तेरे हालेलुया आशीष होने पाए राजा यीशु। उनके जिंदगी पर तेरे आशीष होने पाए राजा यीशु। हर जरूरत उनके मन की बातों का ब्लेस करना राजा। हालेलुया सही समय पर हर एक को अच्छा काम, अच्छा हालेलुया अद्भुत काम होने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं राजा, प्रार्थना करते हैं राजा यीशु के नाम से। उनके जो भाई के लिए हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं राजा। जो घर बिगड़ा हुआ टूटा हुआ उस टूटा हुआ परिवार को तो छोड़ देना फिर से परमेश्वर यीशु। हालेलुया हृदय को जोड़ देना परमेश्वर, दोनों हृदय को जो दूर है, जो गलत सोचते हैं, एक के ऊपर प्यार दूसरों का नहीं है परमेश्वर, ऐसा हालेलुया जीवन ना देकर उनके परिवार को ब्लेस करना परमेश्वर। उन परिवार को जोड़ देना परमेश्वर। माँ अलग, पापा अलग, बच्चे अलग, ऐसे अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं परमेश्वर। ये टूटा हुआ परिवार को एक साथ जोड़ देना यीशु के नाम से, एक साथ जोड़ देना परमेश्वर। उनके हर खुशी से उन्हें हर आनंद से उन्हें हालेलुया ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। उनकी हर जरूरत को, पैसे की चाहे पैसे की जरूरत हो, चाहे घर की कोई सामान की जरूरत हो, या खुशी की जरूरत हो, या आनंद की जरूरत है, शांति का समाधान का जरूरत है, हर जरूरत उनको पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया आप ऐसे ही करेंगे उसके लिए मैं धन्यवाद करता राजा। बहन कमलेश के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए यीशु हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे साथ मिलकर वो भी हालेलुया सेवा में साथ देती है, सपोर्ट करती है, हर संडे को आ जाती है। आज किसी कारण वो नहीं आ पाई है परमेश्वर, उनके परिवार को ब्लेस करना राजा, उनके बच्चों को ब्लेस करना राजा, उनके जरूरत को पूरा करना राजा। उनके हस्बैंड के लिए मैं विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो नशा की जिंदगी जीते हैं परमेश्वर, उस जीवन से छुटकारा देकर तेरे हालेलुया हालेलुया तेरे पास आने के लिए मदद करना राजा, तेरे समूह आने के लिए मदद करना राजा, तेरे गलीसिया में आने के लिए मदद करना राजा, तेरे प्रार्थना में बैठने के लिए मदद करना राजा। बीवी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार को साथ देने के लिए परमेश्वर उन्हें अच्छी बुद्धि से भर देना परमेश्वर, अच्छी ज्ञान से भर देना परमेश्वर। उस भैया को ब्लेस करना राजा, छू लेना परमेश्वर, तेरे लहू से धो लेना परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी भाई के लिए, उनकी मम्मी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष करना। राजू बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके काम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी हर जरूरत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु। उन्हें भी हालेलुया तेरे अद्भुत हाथों में थाम लेना परमेश्वर, ब्लेस करना परमेश्वर, आशीष करना परमेश्वर, बीमारियों से दूर करना परमेश्वर। जो भी आते समय जाते समय सड़कों में आपका ब्लेसिंग होने पाए राजा यीशु। तेरे दूतों के साथ उनको ब्लेस करना, आशीष करना राजा, तेरे दूतों के साथ उनको चलाना परमेश्वर, हर दुर्घटनाओं से बचाना परमेश्वर यीशु। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। और भी जितने बहन लोग इनके साथ हर रोज मिलकर वहाँ प्रार्थना पार्कों में प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों को ब्लेस करना। शांति बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनकी दयाल की बेटी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज वो भी नहीं आ पाई है, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करना राजा, आशीष करना राजा। जो सामने इधर भी हम हालेलुया रहते हैं, वो बहन आकर देख के गई है लेकिन आज आ नहीं पाई है। हालेलुया, उनके बच्चों के भी, उनके परिवार को भी आप आशीष करना राजा। हमारे साथ जुड़कर जितने भी यहाँ पर बैठते हैं परमेश्वर, सभी लोगों को आप आशीष करना, किसी को अधूरा मत छोड़ना परमेश्वर। सारे आदर महिमा तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। स्तुति स्तुति प्रशंसा प्रशंसा करते हैं पिता, आज दिए हुए गवाही को पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना कर रहे थे भाई पिता परमेश्वर, आपने सुना पिता, उसके मैं धन्यवाद करते हैं। शाश्वती सिस्टर बेले भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको तीनों बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के अंदर बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम पर उस सब पिता परमेश्वर सारी पिता प्रॉब्लम को दूर करना यीशु, उनको जरूरत को पूरी करना पिता। उनको ब्रदर भी, छोटा ब्रदर भी, ब्रदर यीशु में से उनको दोनों बच्चे पिता यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, उनको भी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। एक तमिलनाडु में पढ़ रही है, एक बेटी परमेश्वर, एक बता दिल्ली में पढ़ रही है, इस बेटी दोनों को भी आशीष दे परमेश्वर है यीशु मसीह। इन दोनों को परिवार को पिता जुड़ाना परमेश्वर यीशु मसीह, इनको फैमिली को पिता शांति समाधान देना परमेश्वर है। उसी के लिए मैं स्तुति 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 करता हूँ। शांति मरीकेश ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो भी गलीशिया में आ पाए परमेश्वर। उनको बेटियाँ, दो बेटा पिता, एक दामाद, दो दामाद के लिए मैं बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर है यीशु मसीह। उसको बहू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, दोता के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको उनको देवरानी की बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, किरण बेटी के लिए, उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उस परिवार में भी परमेश्वर को संतान बनने की मदद करो। उनको भाई, छोटा भाई भी हमारे साथ आया था बेटा, उसको भी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, किरण को, उनको भाई के लिए, ब्रदर के लिए, उनको माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनको भी छुड़ाना राजा, वो भी मसीह के बारे में जानने के लिए कृपा करना पिता यीशु मसीह। वो भी कोई बंधन में, कोई कष्ट में, कोई कर्ज में, वो दुबावा राजा, सारी दुबावा इस चीज को दूर हटा यीशु, सुख बनाओ परमेश्वर, सुख बनाओ परमेश्वर, आशीष का दरवाजा खोलना। राजू दीदी के लिए मैं प्रार्थना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों पापी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों पिता उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। कमलेश बहन के लिए, उनको शरीर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु। उनको परिवार के अंदर जो भी समस्या होती है दूर भागना, रूह समाधान शांति देना परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह आरती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रशांत के लिए प्रभु परमेश्वर, राधिका के लिए प्रार्थना करता हूँ उनको पिता परमेश्वर। उनको पिता बच्चे, दोनों बच्चे लोग के लिए अपने ब्लेसिंग करना पिता, परेशानियाँ पिता परमेश्वर, सभी कष्ट दूर सब दूर भागना यीशु का अधिकार नाम से पिता यीशु मसीह। प्रभु इस समय में पिता हमारी प्रार्थना सुनना पिता, आपको मैं धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए और भी कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना कहते हैं पिता, सबको हम याद करते हैं, सबको छुड़ाना राजा, सबको मदद करना, जो भी कष्ट में, जो भी तकलीफ में गुजरते होंगे, सारी परेशान को दूर हटाए यीशु के नाम से पिता। मेरे प्रार्थना सुनो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस पितुपुरा एरिया के अंदर उजाला करना, इस पितुपुरा एरिया के अंदर अनेक जाति लोग आने के लिए मदद करना, कोई रुकावट का दूर भागा, कोई भी संकट को दूर भगा, कोई भी प्रॉब्लम को दूर भगा, अपने लव हमारे ऊपर लगी है राजा, हमारे तरफ प्रभु। हम सुसमाचार माने जाते हैं, आपका नाम को ऊंचा करने जाते हैं, उस जहां परमेश्वर अब मदद कर, उन मन को चेंज कर, उन लोगों को परमेश्वर को पास ले आने के लिए मदद कर पिता। अपने परमेश्वर दाऊद ने कहा, तुम रात प्रभु साउल के सामने ये कहा प्रभु, मैं नासरत यीशु के नाम से तेरे पास में आके खड़ा हुई कहा प्रभु। इस समय में हम परमेश्वर के सामने खड़े राजा, परमेश्वर को भवन में खड़ा प्रभु, परमेश्वर का आराधना का पिता समय में पिता आपको हम स्तुति करते हैं, आपका हम विनती रख रहे प्रभु, हमारे विनती को सुनो प्रभु यीशु मसीह। हमारे साथ आके पिता हमारे विनती को पिता आपने उत्तर दे दिया, विश्वास करते हैं अपने उत्तर कर लिया, उसका धन्यवाद। उत्तर परमेश्वर अपने आप कर लिया, उसको मैं धन्यवाद 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 करते राजा। सारे आदर महिमा आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन हालेलुया आमीन। जय मसीह की आमीन। आज हम वचन पढ़ते हैं यशायाह 41:13। कैसी अर्थ पड़ी? हाँ 13 है,
13 क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर में यहोवा तेरे दाहिना हाथ पकड़कर तेरे दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मैं कहूँगा मत डर, तू मत डर, मैं तेरे सहायता करूँगा। मैं मत डर, तेरे हाथ क्या करूँ? तेरे सहायता में करूँगा। कौन कह रहा है? मैंने कहती हूँ, मेरे परमेश्वर कहते हैं। मेरा करुणा कहाँ से आएगा? मेरे यहोवा के पास आएगा। तेरे दाहिना हाथ को पकड़ के तू मत डर, मैं तेरा सहायता करूँगा। ये हमारे परमेश्वर हमारे लिए सहायता करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करते हैं। हम सहायता करने के लिए निर्गम किताब 12 का 13 पढ़ते हैं। निर्गम 12:13। वो जिन घरों में तुम रहोगे, जिन घरों में तुम रहेंगे, उन पर वे लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। आमीन। तुम जिस घर में रहते हैं, तेरे कारण से उस घर के अंदर क्या रहेगा? लहू रहेगा। लहू कौन सा लहू? जिसका लहू। उस घर में हम रहते हैं, उस घर के अंदर क्या रहते हैं? परमेश्वर का लहू रहती है। उस घर में लहू रहती है, उस घर के अंदर शैतान ना आ पाते हैं, कच्च ना आ पाएगा, परेशान ना आ पाएगा, तकलीफ ना आ पाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आ पाएगा। इसलिए कहते हैं जिस घर में तुम रहते हो उस घर के अंदर जीसस का लहू है, जीसस का लव ब्लेसिंग हमारा साथ है, जीसस का आशीष हमारे साथ है, जीसस का हमारा प्रेम हमारा साथ है। जो हम परमेश्वर को मान लिया, परमेश्वर को विश्वास में हम जाने जाते हैं, परमेश्वर को हम विश्वास करने लगे हैं, उस समय में क्या हो जाते हैं? उस घर में तू रहती है, उस घर के अंदर में मेरे लहू है, परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर है। इसीलिए हमारा परमेश्वर का लहू है, इसीलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के संग में बैठते हैं, इसीलिए परमेश्वर को साथ मुलाकात होती है। ये तो नहीं होते है ना? परमेश्वर का लहू हमारे पास ना होते तो हम मुलाकात नहीं हो पाते, बातचीत नहीं करते। परमेश्वर वो मुलाकात होने के लिए परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर है। जिस घर में रहते हैं हम सोचते हैं इस घर में रहते तो मुझे आशीष नहीं मिल रहे, बहन यही सोचते हैं। इस घर में हम रहते तो क्या करते हैं? मुझे सारी बीमारियां होती है, मेरे इस घर में रहते हो बहुत सारे तकलीफ को गुजारना पड़ता है, इस घर में रहते हो बहुत सारे मुझे मुसीबत उठाने पड़ते हैं, यही हम सोचते हैं। घर के कारण नहीं है, वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ हो तो सारी कारण दूर भाग जाएगा, सारी तकलीफ दूर भाग जाएगा, सारी दुख दूर भाग जाएगा। पहले अपने आप हम जागना चाहिए, अपने आप हम என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, நம்ம अपने आप சோதிக்கணும், நம்ம மனதை நம்மளே ஆராய்ந்து பார்க்கணும்। ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது கர்த்தர் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாரு? வழியை திறந்து தருவார்। अपने आप क्या करना है? अपने घर को शोध करना है। इसको नीचे पढ़ते पास्टर जी, हमने पढ़े ना निर्गम का 12 का 13 लाइन में नीचे का दोबारा पढ़ना। अतः मैं उस लहू को मैं देखकर आदि तक मैं उस लहू को मैं देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ जाऊंगा। देखना, परमेश्वर को लहू हमारे ऊपर होते तो जो निशानियां, जो परेशानियां, जो तकलीफ, जो कष्ट वो आएगा, छोड़ के भाग जाएगा। जो परमेश्वर के लहू नहीं है उनको परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर भी तो कुछ नहीं करेगा, शैतान आके अपने आप बीमार कर देगा। परमेश्वर तो कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर तो भलाई करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? मददगार करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा रक्षा दिखाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलते हैं। हम क्या करते हैं? हम नहीं देते परमेश्वर का लहू को। परमेश्वर आपको लहू मेरे ऊपर है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा हम कहने को तो परमेश्वर हमारा दिखाते हैं। मेरे जिस घर में परमेश्वर का लहू उस घर के अंदर
दुष्ट आत्मा ना पाएगा, कोई बीमारी ना आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा, जो बीमारी नहीं आएगा। पहले बात हमारा शांति को दुष्ट आत्मा नहीं छीनने सकेगा। मन में शांति नहीं मिलती है ना, बहुत सारे हमारा घर कुटुंब के अंदर एक एक छोटी छोटी बात को भी बड़ा बात बन के लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई होने के बाद घर के अंदर सब कुछ समाधान टूट जाती है। पहले परिवार को दो दुनिया में भी कब टूटती है, बाद में बच्चे लोग को, बच्चे बड़ा हो जाते हैं, उनको समझ आ जाती है ना, उसका असर पड़ जाती है उनके ऊपर। बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारा असर बच्चे के ऊपर पड़ती है। इसलिए हम जाकर तरह के बात करना, जाकर तरह के हम कुछ भी करना चाहिए। हम नहीं, हम ऐसे रहेंगे तो हमारा बच्चा भी उसका असर आ जाएगा अपने लाइफ में जाने के टाइम। अपने खुद ही खड़ा होते हैं ना, उस समय उनके लाइफ के अंदर उसका असर आती है। मेरे मम्मी पापा का असर तो उसको देख के ना होगा, वो भूल जाते हैं, उसको असर उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। इसलिए हम क्या होना चाहिए, हमारा परमेश्वर को लव जिस घर में है उस घर के अंदर लड़ाइयाँ ना होती है, उस घर के अंदर कष्ट ना होती है, उस घर के अंदर पवित्र आत्मा उड़ाती है, पवित्र आत्मा बात करती है, पवित्र आत्मा उनसे रक्षा करते, पवित्र आत्मा उनको मदद करते हैं। उस मदद के लिए तो हम अभी पढ़ा था, ऐसा यहाँ हम पढ़ते थे ना, पास्टर जी दोबारा पढ़ना। தேவனாகிய கர்த்தராகிய நாம் உன் மனதுக்கு பிடித்து பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் வலது கரத்தை பிடித்து நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை செய்கிறேன். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் உன் வலது கரத்தை பிடித்து நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு तुने செய்வேன். क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मैं तेरे दाहिना हाथ को पकड़ के मैं कहता हूँ, मत डर, तू मत डर, मैं तेरे सहायता करूँगा, मैं तेरा सहायता मैं करूँगा। परमेश्वर कहते हैं, हम पहले का वचन पढ़ दिया, नित्य निर्गम का पढ़ लिया ना 12 का 13। परमेश्वर हमारा सहायता, आरती बहन हमारा परमेश्वर सहायता है। परमेश्वर हमारे लिए दाहिना हाथ को पकड़ के मत डर, मैं तेरे संग में हूँ, ऐसे कहते परमेश्वर। हम क्या हो जाते हैं, हम जब भी देखना अपने कुटुंब को देख के, अपने परिवार को देख के, अपने कष्ट को देख के हम डर जाते हैं, परेशान में हो जाते हैं, तकलीफ में गुजर जाते हैं। हम पढ़ते हैं योग कहना सुना हिंदी में, अय्यूब की किताब 24 का हम 14 पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब और 24 और 14। मेरी लड़की को नहीं आई है, आई आखिर बाकी पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे आवाज आ रही है। अय्यूब की किताब 24:14। पाप पढ़ते ही उठकर तीन दरिद्र मनुष्यों को घात करता। दोबारा पढ़ना पास्टर जी। तमिल पढ़ गए। கொலை பாதகன் பொழுது விடுகிற போது எழுந்து சிறுமையும் எளிமையானவனை கொன்று ராக்காலத்திலே திருடனை போல் போகிறான்। खूनी पाप पढ़ते ही उठकर दिन दरिद्र मनुष्य को घात करता और रात को चोर बन जाता है। सॉरी 23 का 14। 23 का 14 सॉरी।
23 का 14 எனக்கு தமிழ்லையா ஹிந்திலையா? தமிழ் முதல் மொழி ஹிந்தி வருஷம் முடியும். எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார், இப்படிப்பட்டவைகள் இன்னும் அநேக அவரிடத்தில் உண்டு. ஆமே, எனக்கு குறித்து வைத்திருக்கிறது அவரு எனக்கு நிறைவேற்றுவார், அவரிடத்தில் अनेक कार्यங்கள் உண்டு. सॉरी पहले बार बताया था, वो गलत बता दिया था. मतलब वो अय्यूब की 23 का और 14 दो हिंदी में पढ़ना एक बार. जो कुछ मेरे लिए जो कुछ मेरे लिए है उसी ने दाना है, उसने दाना है, उसी को वो पूरा करता है. वो उसी के वो पूरा करता है. जो भी कुछ भी है मेरे लिए है वो मेरा दाना मुझे लिए पूरा करता है. जो मुझे है मेरे लिए था वो परमेश्वर करेगा. वो मेरे लिए चीज है वो मेरे लिए वो परमेश्वर देगा. इस पर हम पढ़ते थे ना, हम मिर्गम के पढ़ते थे. परमेश्वर को लघु काम है, उस घर के अंदर जो कष्ट नहीं आएगा, जो परेशान नहीं आएगा, जो तकलीफ नहीं आएगा, जो दुख नहीं आएगा, दो कष्ट नहीं आएगा, दो बीमारियां ना आएगा, दो लड़ाई नहीं होगा, वहाँ क्या मिलेगा? शांति होगा. उसके बाद पहले पढ़ा तू मत घबराओ, तेरे दाहिना हाथ को पकड़ के मैं तेरे लिए मैं सहायता करूंगा. हम यशायाह में पढ़ते थे. अभी उपति का पढ़ते, सॉरी अय्यूब के पढ़ते थे 23 का हम 14 पढ़ते थे. तो दोबारा पढ़ना, मुझे इसको थोड़ा सा समझ आए, थोड़ा नहीं आया, दोबारा पढ़ना. जो कुछ मेरे लिए है उसमें दाना है, इसमें है जो कुछ है वो दाना मेरे लिए, उसी को वो पूरा करता है. वो उसी है पूरा करता है. जो कुछ है वो मेरे लिए वो दाना पूरा करता है. कौन पूरा करने वाला है? वो परमेश्वर. हम सोचते हैं बहुत सारी चीज होती है दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर भी परमेश्वर को बेटिया लोग कौन आता है? वो उसमें बीज है, वो बीज वाला हमारे पास आएगा. वो हमारे पास है, वो मुझे देने परमेश्वर ने दिए हुए, उसको मेरे पास लेके आके मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ. कैसे? मेरे लिए परमेश्वर ने दिया हो तो वो मेरा पास आएगा, मैं उस घर में रहूंगा, उस घर में मैं सोऊंगा. जो नौकरी मेरे पास है उस नौकरी में मैं जाके नौकरी कर पाऊंगा. मैं रास्ता में गाड़ी में मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ. जो है हमारे पास है वो मेरे लिए, मतलब हमारे लिए परमेश्वर ने वो बीज दिया हो तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा. हम चिंता करने के लिए जो जरूरत नहीं होती है. जो हम सोच के ये मेरे पास है नहीं है, ये सोच कर हम कष्ट में ना रह पाएंगे, हम तकलीफ में नहीं रहना चाहिए. हम परमेश्वर से ये वचन बहुत अच्छा वचन है. अगर वो अय्यूब की किताब 23 का 14 बहुत अच्छे वचन है. कैसे था? वो बीज मेरे लिए हो तो वो मेरा पास आएगा, वो मेरे परमेश्वर मुझे देगा. ये विश्वास करना चाहिए. जो मेरा है वो मेरे लिए जरूर दौड़ के आएगा. जो मेरे पास है वो जरूर मेरे पास आते हैं. कब सब कहते हैं ना, दाना दाना के लिखा होता है. ये कहते हैं लोग, आंटी अंकल लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दाना दाना के में लिखा रहता है. मेरे दाना, उस दाना में मेरा नाम लिखा होता तो मेरे पास फटाफट गर्व आ जाएगा. ये लोग मेरे चर्च में आने के लिए एक बहन भाई लोग को नाम लिखा होता तो मेरे पास दौड़ के आएगा. मैं विश्वास करता हूँ. परमेश्वर आप स्तुति करो, ये हम बोलने चाहिए. क्या करना चाहिए? मेरे गरीशा में उनको नाम लिखा होता तो मेरे पास आके वचन सुनने वाला हो तो वो बीज मेरे पास लिया प्रभु, उसको मेरे पास जोड़ो प्रभु, मेरे पास से उनको लिया प्रभु. इसमें मेरी नौकरी मुझे चाहिए प्रभु, उसमें मैं नौकरी का तनख्वाह लेने के लिए आपने वो बीच में लिखा हो तो प्रभु मुझे वो नौकरी दे. ये हम कहना चाहिए. परमेश्वर इस घर मेरा है ऐसे लिखा हो तो वो घर मुझे दे राजा, वो लिखा हुआ बीज को मैं लेना चाहता हूँ. ये हम कहना चाहिए. ये संतान मेरे पास नहीं है प्रभु, वो संतान में जो पैदा वो करना है उस बीज को मैंने लिखा हो तो मुझे वो बीज को भेजो प्रभु. ये हम परमेश्वर से कहना चाहिए. ऐसे हम कहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए
आशीष देगा। हम कहने के लिए हम पता नहीं चलता बहन ब्रदर सिस्टर लोगों को, हम परमेश्वर से हम पूछते नहीं है, परमेश्वर से हम कैसे उनसे बात करना बोल रहे हो समझ नहीं आते हैं, इसलिए कहते हैं सब सुनो। आज का यूट्यूब को मेरे देखने वाला ब्रदर सिस्टर और मसीह का जानते हैं नहीं जानते हैं बहन भाई लोगों, आपके पास यीशु समाचार पहुंच रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं किसी घर में किसी घर के अंदर मेरा लहू है, उस घर के अंदर परेशानियां ना आती है। जो परमेश्वर कहते हैं ऐसा है मैं बड़ा, परमेश्वर कहते हैं तू मत डर, तेरे दाहिना हाथ को पकड़ के मैं कहता हूँ तेरे सहायता मैं करूँगा। इस अपने पढ़ते अय्यूब के किताब में पढ़ा था, उस बीज में मेरा नाम लिखा हुआ वो बीज मेरे पास आएगा। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे लिए सहायता करते हैं, जो वो मनुष्य नहीं कर पाएगा, जो लोग इंसान नहीं कर पाएगा, जो परमेश्वर कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर हमको खड़ा करके हम करा सकते हैं। हम क्या करना चाहिए, ये परमेश्वर आप मुझे आज्ञा दे, परमेश्वर आप मुझे हिम्मत दे, परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दे। परमेश्वर हम गलीशा में आके आपको महिमा करेंगे, आपका आराधना करेंगे, आपको संतान बनेंगे, हमारे दुनिया की चीज को हम छोड़ेंगे, दुनिया के पाप को छोड़ेंगे। क्यों, आप सर्वसृष्टि के मालिक है, हमारा लहू परमेश्वर हमारे लहू बगाया, उस लहू किससे घर है, उस घर के अंदर जो प्रॉब्लम नहीं आते, कहते प्रभु हमको वो प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए, प्रभु आपको लव हमारे ऊपर लगी है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। ये हम कहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सहायता करेगा। इस वचन को सुनने वाला भाई बहन लोगों को आपको भी ब्लेसिंग करेगा। आप इस वचन को खड़े करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमें और राबा शबा रबा रबा और रे के रे मेरे शानदारा वाला रबा और रिशानदारा खरा बरा बरे मेरे ओ मैं धन्यवाद करते परमेश्वर, ओ कोटि स्तुति करते राजा, आप कोटि महिमा करते राजा, ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा वासी कर रहे राजा इस समय में पिता, इस हमें हमारा पंख में प्रभु हम धन्यवाद करते राजा, इस आराधना में अपने परमेश्वर हमारे साथ था प्रभु, आपको मैं कोटि धन्य 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 राजा, इस वचन को बोलने की मुझे हिम्मत दिया, आपको धन्यवाद परमेश्वर। हम नहीं बोला इस वचन को पिता, परमेश्वर ने बात सीखी है उसको मना मारा और इसे मेरे कारा मारा शबुराबा किस घर में पिता परमेश्वर का लव है पिता, उस घर के अंदर परमेश्वर सारी कच्च को, सारी पाप को, सारी तकलीफ को, सारी बीमार को दूर करने वाला यहोवा है, विश्वास करते हैं परमेश्वर। ये स्वयं बड़े परमेश्वर देने दाहिना हाथ को पकड़ के तू मत डर, तेरे सहायता मैं करूंगा। परमेश्वर आप सहायता करना राजा, परमेश्वर आपने दिए हुए बीज को पिता उस नाम लिखा हुआ तो परमेश्वर जो मांग रहे हैं वो पूरी आप पा पाएंगे परमेश्वर, हम पूरी पता परमेश्वर विजय पाएंगे राजा। यीशु उस बीज को पिता ने खा रखा, उस बीज को पिता नाम लिखा हुआ गलीशा में, इस गलीशा में आने वाले बहन भाई लोग को पिता आपने नाम लिखा हुआ तो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करना, उनको खींच के लिया राजा, इसके मैं धन्यवाद करते हैं राजा। ओ कोटि धन्य यीशु के नाम से, ओ हमारा शेरे में रिखे रे मेरा शबूरी दिया बा, ओ मैं धन्यवाद करते हैं पिता। इसी पिता यूट्यूब पे देखने वाला सिस्टर ब्रदर के लिए, पास्टर लोग के लिए, विश्वासी लोग के लिए, सबको पिता इस वचन को पिता वो अधिक जानने के उनको मन को टच करना राजा, उनको सोचने को टच करना पिता, जो उनको चाहिए जरूरत को पूरी करना, जो हमारे लिए चाहिए पिता वो पूरी करने के लिए दुनिया में आया परमेश्वर हमारे संग में, उसका मैं कोटि 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 धन्य कहता हूँ, कोटि कोटि स्तुति करता हूँ राजा। इस गलीशा में आए हुआ बहन भाई लोग अकाली हाथ में ना जाना चाहिए, आपका आशीष को लेके जाना चाहिए राजा। क्यों, हमारे परमेश्वर इस गलीशा के अंदर है, हमारे सर्व सृष्टि की मालिक परमेश्वर हमारे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ। और ईशा वाला और आशा का राज और ईशा के रे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि स्तुति करते हैं। इस गलीशा को और अनेक जाति लोग आने की मदद कर, ये पीतबरा का अंदर उजाला कर राजा, ये पीतबरा छोटा नहीं है, बहुत सारी बढ़िया बड़ा प्रभु, हमारे गलीशा भी छोटा नहीं है, बहुत सारा बड़े पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हमारे गलीशा के अंदर है पिता। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपने अपना खुद का काम करेगा, आश्चर्य के कर्म करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, उसके मैं धन्यवाद करते पिता। प्रभु हमारा आज का मीटिंग को अपने ब्लेसिंग किया, आपको मैं कोटि स्तुति करता
करता हूँ। आज के वर्शिप को ब्लेसिंग किया पिता, मधुर संगीता को ब्लेसिंग किया, प्रार्थना को ब्लेसिंग किया, लास्ट में पिता बच्चों को अपने पिता आपसे बात सी किया, परमेश्वर हमसे बात किया, उसको भी हम ब्लेसिंग करते हैं राजा। परमेश्वर मेरा साथ है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर गलीशा के अंदर है। ओ विश्वास करता हूँ प्रभु, विश्वास करते हैं राजा, विश्वास करते हैं रबा रा शाखा रबा रबा ओ रे शे गे रे रे मेरा शाखा रबा रबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता, सारी आदत महिमा आपको हाथ में देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा साथ, हमारे गलीशा के साथ, हमारे परिवार, हमारे परिवार के साथ सदा दिन बने रहेगा। आमीन। सब हाथ उठा के हालेलुया बोलना, हालेलुया, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की। रिया जिया, रिया जिया, जिया 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 बेटा, आपको शक्ल नहीं दिख रहा है, खड़ा हो जाओ। हमारा जिया बेटी है, आमीन। और राती का बेटी तो आई नहीं है।